कल हमने कर लिया था, आज हम करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए साइलेंट साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला होगा वर्ड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लिखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 465 article and 25 part and 12 schedule. Hence it is world longest. The Indian Constitution contains 465 articles, 25 part and 12 schedule. Hence it is world longest constitution. Hence it is world's longest constitutions. Next point. It is a comprehensive, elaborate. It is a comprehensive, elaborate and detailed documents. The factor that have contributed to this phenomena are geographical factor, historical factor, influence of Government of India Act 1935, a single constitutional for both center and state, and dominance of legal luminaries. अब आगे लिखना है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। Our parliament has adopted a parliamentary system of democracy. Constitute assembly decided to espouse ये parliamentary form of government both for the center and the state, Next paragraphs. In the Indian parliamentary system, distinctions is made DISTINCTION between the nominal and real executive head. The council of minister is responsible. Before the Lok Sabha. The lower house of Union Parliament. Full stop. There are close relation between the executive and the legislature executive function.
and the legislature educative function are exercised by member of the are exercised by member of the parliament appointed by prime minister to the cabinet prime minister to the cabinet. Next point, the parties in the monetary serve in opposition. Monetary serve in opposition. The party are of the parliament. The party are of the parliament. फिर आगे लिखो जरा नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स. Fundamental rights. The Constitution of Indian grant and guarantee. The Constitution of India grant and guarantee fundamental rights to its citizen. Please stop. The Constitution of Indian confirm the basic principle that every individual is permitted to enjoy certain basic rights and part third of the constitution deal with those rights which are known as a fundamental rights. अगला point, the six fundamental rights include right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religious, culture and educational rights, and right to constitutional remedies. Article 32. The fundamental rights are justiciable and are not absolute. Reasonable constraints can be imposed, keeping in view the security required of the state. अब लिखना है drawn from various sources. Drawn from various sources. ये लिखो. Indian Constitution has observed those features from the nation's constitution that suited Indian problem and expressions. अगला point, Constituent Assembly took the best of feature from anywhere and made them its own. Our constitution has feature taken from the government of India Act 1935. Those features are federal scheme, office of the governor judiciary, public service commission, emergency provision, administrative details. अब लिखना है 12 फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 12 फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बारो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कंट्रीज एंड बारो फीचर, दो कॉलम बनाओ. एक होगा कंट्रीज तो दूसरा होगा बारो फीचर. बारो फीचर. कंट्री है ऑस्ट्रेलिया. अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड
ज्वाइन सेटिंग ऑफ 2 हाउसेस। फिर हम आते हैं कनाडा, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रिजुडिशरी पावर इन द सेंटर, वेस्टिंग VESTING, वेस्टिंग ऑफ रिजुडिशरी पावर in the center, appointment of state governor by the central advisory jurisdiction of the Supreme Court. अब लिखो आयरलैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। जापान से क्या लिया? प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ। सोवियत यूनियन, फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, economic and political. The UK, parliamentary government, rule of law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, prerogative rights, parliamentary privileges, bicameralism। यूएस से क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of the president, removal of Supreme Court and High Court judges, post of vice president। जर्मनी से क्या लिया हमने? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। द फ्रांस, रिपब्लिक, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी इन द प्रेम्बल। अब लिखो फंडामेंटल राइट से अब ड्यूटीज पे आओ। फंडामेंटल ड्यूटीज, द कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट एक्ट, 1976, चैप्टर 4 पार्ट ए, इंट्रोड्यूस ए कोड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन। पैराग्राफ चेंज करके, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंडीड due to serve as constant reminder to every citizen that while the constitution has specially conferred on them certain fundamental rights, it also requires the citizen to observe certain basic norms, democratic conduct and democratic behavior। अब अगला लिखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। पहला पॉइंट, ये यूनिक एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is that is comprises in the directive principle of state policy। These principles are in the nature of directive to the government to implement them to maintain social and economic democracy, federation with a strong centralizing tendency, The Indian Constitution include all the federal characteristics of governance such as dual government system, division of power between the three state organs, executive, judiciary and legislature, constitutional supremacy, independent judiciary and bicameralism, lower and upper house। अब लिखना इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। Integrated judicial system. The Constitution provides for a single integrated judicial system common for the Union and state. The Supreme Court of India work at the apex level, High Court at the state level, and other courts work under the high courts. Independent judiciary.
independent judiciary. It is necessary to secure the philosophical foundation of the rule of law and democracy. Firstly, the constitution maker created a separate judiciary independent of legislature and executive. Next. Secondly, the constitution has ensured the complete independence of judiciary in matter of administration and finance. A mixture of rigidity and flexibility. इसमें लिखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट स्ट्राइक ए फाइन बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू एजी ऑफ modification. Article 368 lays down two types of modification. First point, some provision may be amended by special parliamentary majority, 2/3 majority of the members of each house present and vote, and the majority of each house's total membership. Next point, some other provision can be amended by a special parliamentary majority and with half of the total state ratifying them. This ensure that with the widest possible majority, the constitution is amended at the same time in the manner of ordinary legislative process. Certain provisions of the constitutions can be amended by a simple majority of parliament. Such amended are not within the scope of Article 368. अब अगला लिखना है सेपरेशन ऑफ पावर. एक्सप्लेन कर दूं, चलो देखो जरा. वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा संविधान नहीं है जिसके 365 आर्टिकल्स, 465 आर्टिकल, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल. लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है 395 का है जिसमें 12 शेड्यूल है, 22 पार्ट है. ये तो एक्सटेंडेड है, जैसे 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, तो 465 इस तरह हो गया. अब आता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. यहाँ पर डेमोक्रेसी है बट डायरेक्ट नहीं. हम पार्लियामेंट के मेंबर चुनते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर पीएम चुनते हैं, सीधे प्रधानमंत्री को हम नहीं चुन पाते. ठीक है, इसलिए इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा. डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला देश है वो है स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है बट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. पार्लियामेंट ही सब कुछ है, जो भी चाहे वो ऑर्डर करे. अब फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है? किसी भी राज्य में नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए फंडामेंटल राइट्स जरूरी है. अगर आप फंडामेंटल हटा दोगे तो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा किसी कीमत पर नहीं हो सकती. फंडामेंटल ही है जो नागरिकों के सुरक्षा की गारंटी देता है, और इसीलिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. लेकिन संपत्ति का जो फंडामेंटल है वो हटाया गया. उसके पीछे रीजन ये था कि अगर वो होता तो कोई भी कितनी भी प्रॉपर्टी क्यों ना गेन कर ले, हमारी कोई भी संस्था उससे ये नहीं पूछ सकती थी ये पैसा कहाँ से आया. लेकिन जब से हमने प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स हटा के लीगल राइट्स बनाया, 300A में डाला इसको, तब से हमारी सारी संस्थाएं पूछ सकती हैं कि आपके पास आय से अधिक संपत्ति कहाँ से आई. फिर आता है ड्राउन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. अब अलग अलग सोर्स भी हैं डेवलपमेंट्स के कि कहाँ से क्या लिया, तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, हो तो आप जानते हैं कहाँ से क्या लिया. अब आता है फंडामेंटल ड्यूटीज. हमने राइट्स तो अमेरिका से लिया, लेकिन ड्यूटीज हमने रसिया से लिया. दुनिया भर में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कौन आवाज उठाता है? वो देश है अमेरिका. और कर्तव्य करने के लिए कौन आवाज उठाता है? वो देश है रूस, रसिया. इसमें आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये इसको फंडामेंटल राइट्स की तरह तो अधिकार नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं. जैसे चुनावी वादा कर लेना. आप लेकर एक प्रपोजल जाते हो
कि हम सभी को ये अधिकार देंगे, ये अधिकार देंगे, ये राइट्स देंगे, ये राइट्स देंगे। अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो पब्लिक फिर अगली बार आपको सत्ता में नहीं आने देती। इसीलिए केटी शाह को कहना पड़ा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरीके से पोस्ट डेटेड चेक की तरह है कि अगर आपने साइन करके किसी का अमाउंट भर के दे दिया तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, इस तरह से। फिर आता है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। हमारी जो है टेंडेंसी जो है सेंट्रलाइजिंग है, और हम हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं कैसे क्या करें और क्या ना करें। इंटीग्रेटेड हमारा जुडिशियल सिस्टम है। जुडिशियल सिस्टम एक दूसरे को कोऑपरेट करता है। हमारे जो 3 पार्ट हैं, वो वहां से आप जुडिशियल सिस्टम लो तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। और इसके बाद एक कोर्ट के बाद भी हमारे 3 पावर और हैं, एजुकेटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी। सब आपस में इंटर रिलेट हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सारे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने ये भी अमेरिका से लिया। अमेरिका में भी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और इंडिया में भी, यानी जुडिशरी पर कोई प्रेशर ना तो अमेरिका में ना ही यहाँ पर है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम वहां से लेकर आए। मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर पावर जो है रिजिड है, कब हो, जब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, इमरजेंसी लग जाती है। और फ्लेक्सिबल कब होता है, जब फेडरल होता है, तब ये फ्लेक्सिबल, एफ से फेडरल और यूनिटरी से रिजिड होता है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। बैलेंस बिटवीन द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशरी, सुप्रीमेसी और सेपरेशन ऑफ पावर। 3 पार्ट बांटे ही गए हैं। एक एजुकेटिव को पावर दिया गया, उसका हेड मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति है। लेजिस्लेटिव पावर का हेड है लोकसभा स्पीकर और पार्लियामेंट के मेंबर, और जुडिशियल पावर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पावर सेपरेशन की ये बात हो गई। बाकी आगे अभी कल इस पर फिर बात होगी, तो आगे फिर बढ़ेंगे।